welcome to my channel. I am Madhurima Sharma and today I am going to talk about Western and Eastern philosophical, ethical and aesthetic perception of communication. Aristotle, Plato, Hindu, Buddhist and Islamic tradition. ये आपका सिलेबस है मास कम्युनिकेशन. जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपको टॉपिक उसमें मिलेगा. और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. उसमें मैंने साधारणीकरण मॉडल को डिस्क्राइब किया है. Okay, so let's start what we will discuss today. So topics हैं Aristotle and Plato, Buddhist concept of communication, Islamic tradition या फिर Islamic perspective of communication. So one by one we will discuss. So first of all, Aristotle. While exploring the human nature scientifically, Aristotle developed a linear model of communication for oral communication, which is known as Aristotle's model of communication. This is considered as the first model of communication and was proposed before 300 BC. It is also the most widely accepted among all the communication model. So Aristotle model of communication mainly focus on speaker and speech. It can be broadly divided into five primary elements: speaker, speech, occasion, audience and effect. So here in diagram you can see स्पीकर जो है वो स्पीच जो दे रहा है इन अ पर्टिकुलर ओकेजन. देन जो आपके जो ऑडियंस है जो सुन रहे जो रिसीवर है फिर उन पे पर्टिकुलर इफेक्ट. तो ये एक लीनियर मॉडल है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. Aristotle's communication model is a speaker centered model as the speaker has the most important role in it and is the only one active. Speaker जो है speaker centered है Aristotle model. It is speaker's role to deliver a speech to the audience as we have seen in diagram में देखो आप. ठीक है. The role of the audience is passive, influenced by the speech. This makes the communication process one way from speaker to receiver. The speaker must organize the speech beforehand according to the target audience and situation या फिर occasion. The speech must be prepared so that the audience be persuaded or influenced from the speech. तो ऐसा speech ready करना है, ऐसा speech prepare करना है कि easily जो है persuade कर सके, influence कर सके जो हमारे audience या receiver को. Next is Plato. The Greek philosopher Plato wrote dialogues to teach his principle to the readers. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था. ही बिलीव दैट ओरल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल दैन रिटन लैंग्वेज as he feared people would not understand the most intimate principle of life if transmitted in a written form. He decided to teach them orally. तो पहले भी ऐसा ही होता था. एंशिएंट टाइम में भी रिटन कम्युनिकेशन उतना नहीं था. ओरली लोग ही अपने इन्फॉर्मेशन को या जो भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते थे, डिसेमिनेट करते थे. ठीक है. Plato preferred to write in a dialogic form. In fact, he believed that oral communication is superior to the written text. ठीक है. He believed that writing is in the form of dialogues would were helpful for transmitting principle to people with the aim of spreading the concept in his doctrine in the most congenial way. जो प्लेटोस की जो अप्रोच थी टीचिंग की वो बहुत ही मॉडर्न, उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं जो मॉडर्न है. जैसे कि अभी क्या होता है ना, लिमिटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी. फिर भी ओरली जितना हो सके, जितना इजीली जो हो सके लोगों तक अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना. तो रिटन टेक्स्ट को अगर रिटन टेक्स्ट में भी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें तो वो डायलॉगिक फॉर्म में होता है तो ईजिली समझ में आता है. और अगर स्पोकन लैंग्वेज में बोले तो वो और अच्छे से समझ में आता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो. जैसे कि इंस्ट्रक्शनल मूवीज़ है या फिर अगर आप कुछ इन्फोग्राफिक्स में देखते हो या फिर कुछ ऐसे मूवीज़ जिसमें कि एनिमेशंस वगैरह ग्राफिक्स यूज़ होता है, दे आर मोर ईजी टू अंडरस्टैंड एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक. अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसी को आप ऑडियो बुक, अगर आप ऑडियो बुक सेम बुक को सुनते हो ज़्यादा समझ में आता है. तो टेक्नोलॉजी जहाँ पर यूज़ होती है तो वहाँ पर ईजिली समझ में आता है. तो सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई तरीके से मतलब लोगों तक पहुंचाना मैसेज को, ये प्लेटो का था. इसीलिए वो ओरल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने दिया था. नेक्स्ट जो हमारा है वो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो बुद्धिज्म जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा हु लिव्ड इन
who lived in 6th century before Aristotle. The origin of his theory was explain how to grasp a message properly. तो जब ग्रास्पिंग की बात आती है तो ये रिसीवर का रोल होता है. रिसीवर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में या बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बोल सकते हैं. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि हाउ टू ग्रास्प अ मैसेज प्रॉपरली. दिस इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ हाउ वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मैसेज वेर एवर ही गेट इट फ्रॉम. कोई भी अगर पर्सन मैसेज को जब एक्सेप्ट करता है तो वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इट टोटली डिपेंड अपॉन द रिसीवर. ये सिखाया जाता है इसमें, ठीक है. when one goes through this sutra, ये एक टेक्निक है, one can find how message can be grasped without taking prior belief, stance, report and religious text and so on. जहाँ से भी आपको information मिल रही है तो वहाँ से उस चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो इसमें बुद्ध के जो लिटरेचर्स थे, बुद्ध का जो कम्युनिकेशन टेक्निक था, उसमें ये सब बताया गया है. ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज स्ट्रक्चर्ड एज फॉलो. द कम्युनिकेशन इज वन हु गेट अ मैसेज फ्रॉम एनीवेयर with whatever consequence after scrutinizing it by himself epistemologically. मतलब कि अपने नॉलेज से उसको एग्जामिन करना. जब आप किसी चीज़ को एग्जामिन करते हो तो उसको समझते हो कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है. तो जहाँ से भी आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, जहाँ से भी जो भी सोर्स ऑफ मैसेज, कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट है, मूवी है, टीवी है, वॉट एवर, कहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो पहले से आप उसको स्क्रूटनाइज करते हो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है. दिस कुड बी एक्सप्लेन एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स. आप किसी भी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. द की कॉन्सेप्ट इज स्क्रूटनाइज ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द मैसेज यूजर. तो यहाँ पे रिसीवर का रोल इम्पॉर्टेंट है. जो रिसीवर है उसके नीड्स, एटीट्यूड, वैल्यू, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, पर्सनैलिटी वेरिएबल, एवरीथिंग इफेक्टेड. Discussion according to ever mentioned extract, the Buddha preaching in Kalama Sutta gives various communicative meanings. ये जो कलाम सूत्र ये एक लिटरेचर है जिसमें कि बुद्ध की जो बातें हैं वो बताई गई कि कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है. इट शोज द बेसिक एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एस्पेक्ट इन अ सर्कुलर मॉडल. द बुद्धा प्रीच्ड दैट इफ देयर इज अ डाउट देयर इज नो ट्रूथ. डाउट होगा तो ट्रुथ है ही नहीं. इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ ऑफ द मैसेज वन इज एक्सपेक्टेड टू डिसवेड द डाउट कनेक्टेड टू इट. सबसे पहले आपको दिमाग से डाउट हटाना चाहिए. जब भी आप किसी भी मैसेज को रिसीव करते हो, अगर उसमें डाउट है तो वो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, वो सच ही नहीं है. इट इज़ द फर्स्ट टाइम वी फाइंड एक्यूरेसी एंड द सोर्स ऑफ द न्यूज़ फोकस्ड. मतलब सोर्स पे भी मतलब सोर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन. सो ट्रूथ फर्स्ट इन जर्नलिज्म इज बेस्ड ऑन दिस. तो जर्नलिज्म का तो बेसिस है वो ट्रूथ पे ही डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव न्यूज़ होना चाहिए, ठीक है. वट इज यूनिक इन दिस मॉडल इज द रिसीवर्स रोल. एज वी हैव डिस्कस, रिसीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिसीवर पे अटेंशन टू द कम्युनिकेटर. जिसके लिए मैसेज बनाया गया, इनकोड किया गया, वो इम्पॉर्टेंट है. ऑब्वियसली रिसीवर इम्पॉर्टेंट है. और परसेप्शन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. परसेप्शन इज द मेंटल एक्टिविटी बाय विच सेंसरी इनपुट फ्रॉम आवर ईयर एंड आइज इज क्लासिफाइड इनटू रिकॉग्नाइजेबल कैटेगरीज एंड मीनिंग. तो हम लोग मीनिंग बनाते हैं, मीनिंग अपने दिमाग में बनाते हैं, ठीक है. तो उसको समझते हैं तभी उस चीज़ को हम लोग ग्रैस्प करते हैं. वंस वी हैव परसीव द सिंबल वी बिगिन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग और डिजाइनिंग मीनिंग टू इट, ठीक है. As it is mentioned in Kalam Sutra, the new source are report, religious text, teaching, hearsay. तो ये सारी चीज़ें जो है वो source है. They were supposed to be in written or oral form at that time. In a Kalam Sutra, it is mentioned that considering appearance, inference, speculation, opinion, and seeming possibility pave the way of accuracy of the news. ये सारी चीज़ें जो है उसमें consider की जाती है. When you know, ये जो मैं फ्रेज अभी पढ़ रही हूँ, इट इज रिलेटेड टू द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज, ठीक है. व्हेन यू नो फॉर योर सेल्फ दैट सर्टेन थिंग्स आर अनहोलसम और अकुशल एंड रॉन्ग एंड बैड, देन गिव देम अप. छोड़ दो उसको, मतलब उसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं. एंड व्हेन यू नो फॉर योर सेल्फ दैट सर्टेन थिंग्स आर होलसम और कुशल
एंड गुड देन एक्सेप्ट इट एंड फॉलो देम। तो एक बुद्ध की प्रिंसिपल ये थी कि जब आपको लगे कि कुछ सही है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये पर्सन की एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है ये चीज़। ओके, नाउ four communicative principle of Buddhism. Claims that four communication principle must be preserved in order to reach harmony among human beings. The goal of the four communication principle is to reach greater clarity and respect in your relationship. Human beings are speech sorry human being use speech to introduce their own ideas, feelings and emotion to other. When you do it right, people can better understand and you can consequently your relationship will with them improve. आप अच्छे से कम्युनिकेट करो तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो ईजिली आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा. द फोर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स आर ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, यूजफुलनेस एंड पीस. Each one of them aims to make conversation more valuable and meaning. तो ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो उसमें रियलिटी होनी चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो डिसेमिनेट कर रहा है उसके लिए भी, और और जो जो उसको रिसीव कर रहा है उसके लिए काइंडनेस. जब आप काइंडनेस के साथ कुछ करते हो, काइंड बिहेवियर के साथ कुछ करते हो, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसमें. ठीक है, आप डिसरेस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन नहीं मतलब शो करोगे वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनी बडी. एंड लास्ट इज पीस. इसे बोलते हैं साइलेंस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. साइलेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. पीस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ज़रूरत है तो ही बोलना चाहिए, अदरवाइज लिसनिंग इज़ दी बेस्ट थिंग. जब आप कम्युनिकेट करते हो, किसी को सुनते हो तो उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो. सो दीज आर द फोर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिज्म. ओके, सो हियर एक डिफरेंस है बुद्धिस्ट मॉडल में और एरिस्टोटल मॉडल में. ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है इस वीडियो में. सो इन द एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ कम्युनिकेशन द आइडिया ऑफ मैनिपुलेशन इज सेंट्रल. ओके, जितने वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं उसमें मैनिपुलेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, या परसुएशन जो है वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है. इन बुद्धिस्ट मॉडल हार्बर द नोशन ऑफ शेयरिंग एंड म्यूचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट. जितने भी ईस्टर्न मॉडल हैं या नॉन जो वेस्टर्न मॉडल नहीं है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप कैसे शेयर कर रहे हो, म्यूचुअल दोनों में बेनिफिट्स है या नहीं. रिसीवर्स का इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है. सो द डिफरेंस बिटवीन टू मॉडल कैन बी सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट. एरिस्टोटलियन मॉडल एंड बुद्धिस्ट में डिफरेंस देखते हैं. एरिस्टोटलियन मॉडल में एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटर जो सेंडर है, लेकिन बुद्धिस्ट में जो एम्फेसिस ऑन रिसीवर. एरिस्टोटल मॉडल में इन्फ्लुएंस इज द की नोशन, इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट होता है, बट बुद्धिस्ट में अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. एरिस्टोटलियन मॉडल में फोकस ऑन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, बट बुद्धिस्ट मॉडल में फोकस ऑन चॉइस, वेदर दे आर रेडी टू रिसीव और नॉट, अंडरस्टैंड कर पा रहे या नहीं कर, तो उनके चॉइस, रिसीवर के चॉइस पे फोकस है ये. नेक्स्ट, एरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है, एम्फेसिस ऑन आउटवर्ड प्रोसेस, क्योंकि आप परसुएट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आउटवर्ड प्रोसेस है वो. बट बुद्धिस्ट जो है वो आउटवर्ड एंड इनवर्ड बोथ है, मतलब आप उसको दिल से एक्सेप्ट भी कर, जो भी आप समझने की कोशिश करते हो वो अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हो, तो वो आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी हो पाता है. मतलब बाहरी जो चीज़ें को कंट्रोल नहीं बोल सकते, जैसे कि जब कोई कम्युनिकेट करता है तो सेंटर का भी इंपॉर्टेंट रोल है और रिसीवर का भी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये बोथ हो गया आउटवर्ड एंड इनवर्ड प्रोसेस. देन एरिस्टोटल मॉडल में रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर असिमेट्रिकल, बिकॉज यस यहाँ पे तो पूरी तरह से कम्युनिकेटर पे एम्फेसाइज किया गया है, बट इन बुद्धिस्ट मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेशन रिसीवर इज सिमेट्रिकल. ओके, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. देन एरिस्टोटल मॉडल में स्ट्रेस ऑन इंटेलेक्ट, ओके, एंड बुद्धिस्ट मॉडल में स्ट्रेस ऑन एम्पैथी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस्लामिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. Hamid Maulana has offered a model that not only challenges Western model of communication but also Western model of society. Islamic community also differs from Western notion of community. Obviously, Western जो होता है, Western model of communication थोड़ा different होता है. In Islamic society, Ummah, the community of faithful, is formed based on shared belief in a unity of God, द यूनिवर्स एंड अ नेचर. तो एक शेयर्ड बिलीव के साथ जो है, यूनिटी के साथ जो है वो फॉर्म होता है.
Tabligh, throughout the history of Islam, has provided a vast number of people from diverse races, language, and histories a common forum for participation in a shared culture. ठीक है, तबलीग जो है उसको हम लोग उसको इसके लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. ठीक है. तबलीग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. ओके, मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलत है तो सॉरी उसके लिए. तो ये प्रोपेगेशन है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है. ठीक है. Prophet Muhammad was someone who understood the importance of communicating with the people. He did not converse with or embrace only believers. तो उसके सबके साथ कम्युनिकेट करने को मतलब इम्पॉर्टेंट समझते थे. Rather he saw all people irrespective of religion, language, race, gender, social status or role as possessing value, and thus he established good communication with all of them. Prophet Muhammad brought the divine message into a form that people could perceive, hear, feel about what they could read, talk, and write. He set example that could be brought into the life and practice. Okay, the level of communication and social relationship in Islam. तो कम्युनिकेशन के लेवल क्या, इंटरपर्सनल, ग्रुप, क्रॉस कल्चरल, रिलीजियस, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मास कम्युनिकेशन. तो हर एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन या सोशल रिलेशनशिप जो है इसमें समझाया गया कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है या आप कुछ इसमें मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने साधारणीकरण मॉडल को एक्सप्लेन किया है, तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा ताकि वेस्टर्न और ईस्टर्न में आप डिफरेंस समझ पाएँ. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.